So in a very simple manner, what we are doing is we are recapitulating our memory and we are enhancing our information and knowledge about coordinate geometry. No? चलें स्टार्ट करें. हाँ जी बेटा. चलो. बातें वही हैं जो हमें कल कही गई थी कि रेने डेकार्टे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए थे. उन्होंने he was the first person in the 17th century to give an idea of dividing or locating a point in a plane. He said he has given this idea that let's draw two perpendicular lines. The horizontal one, let's call it as x-axis, the vertical, the y-axis, and wherever they will intersect is the origin. In physics, this point of origin, the origin is known as the point of reference. है ना? Point of reference क्या होता है? ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है. So this is point of reference. This axis is x-axis, so इसको हम xo x dash axis भी कहते हैं, हम इसे x axis भी कहते हैं, और इसके नेगेटिव पार्ट में भी कोई पॉइंट होता है तो उसको भी हम माइनस x एक्सिस भी कह सकते हैं, नेगेटिव x एक्सिस भी कह सकते हैं, या x एक्सिस भी सिंपल कहेंगे तो चलेगा. एक बार फिर रिपीट करूं, हम x एक्सिस भी कह सकते हैं, हम xo x dash एक्सिस भी कह सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव पार्ट पे भी कोई पॉइंट लोकेट करें तो उसको भी नेगेटिव x एक्सिस कहने की जगह हम उसको x एक्सिस भी कहेंगे तो भी चलेगा. ठीक होता है ना? इसी तरह से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया था हमने y y डैश वाला. ठीक है. और इस पे भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का परपेंडिकुलर लाइंस का, ये ओरिजिन कहलाता है. यहाँ पे एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस दोनों जो है वो 0 0 ओरिजिन से होते हैं. यानी कि यहाँ से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन. Towards the right hand side, it is positive. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Upwards, it is positive. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, something like that. Similarly, on the left hand side, it is negative. So -1, -2, -3, -4, -5, -6, and downwards again it is negative. इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया था in 4 parts. As we used to measure the angles, we measure the angles in anti-clockwise direction. So this is the first quadrant where both the abscissa and ordinate are positive. This is the second quadrant, and here abscissa is negative but ordinate is positive. Abscissa कौन सा? जो x coordinate होता है वो, और y ordinate किसको कहते हैं? जो coordinate axis में पार्ट में सेकंड पार्ट होता है उसको, है ना? This one is the third quadrant, and then the third quadrant both are negative, abscissa as well as ordinate, and this one is the fourth quadrant. Here the abscissa is positive but the ordinate is negative. Right? I have written some of the points on the whiteboard. If they are visible to you, just let's discuss these points, where the location will be, and let's try to locate these points. Okay, you must have seen in NCERT there are only 2 exercises given in this chapter. First exercise is very simple. He says to locate or give an idea where your studying table lies in your room. Similarly, another question of speed, and the second question, the second exercise, in the second exercise you may find some of the questions. There are 2 questions in fact, precisely. One, कि locate किए हुए हैं पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह सब बता दो. और कुछ दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये क्वेश्चन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप लोकेट करें और हमें बताएं कि इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस दे lie. Again, we have talked about it yesterday that the point will lie either in some quadrant or on the axis. Point कहाँ होगा? या तो किसी quadrant में होगा या वो किसी axis पे होगा, या तो x axis पे या y axis पे. x axis पे हमेशा जो point होगा उसका एब्सिसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, वो 0 होगा. यानी the point will be of the form plus minus x, 0. On the x-axis again, समझिएगा दोबारा से, x-axis पे कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट, what will be the form of coordinate? A point which lies on the x-axis, it will be plus minus x, 0.
we are sure about one thing, that ordinate तो 0 ही होगा क्योंकि point is on the x-axis. Similarly, the general form of a point which lies on the y-axis, general form of a point which lies on the y-axis is 0, plus minus y. One thing we are sure about the y-axis is that abscissa is 0. चाहे आप 0 ओरिजिन से ऊपर जाएं, से नीचे जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको abscissa तो 0 ही मिलेगा क्योंकि the point is lying on the y-axis. राइट है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डिनेट पार्ट, लेकिन एब्सिसा तो 0 ही होगा. राइट, क्लियर है ना. अब आगे चलते हैं. चलो, a 2 3 है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो हमें मालूम है a विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. छोटे बच्चों की तरह समझाऊं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें शुरू में नहीं आई, आती 7th 8th में नहीं पढ़ी थी, तो बहुत सिंपल है, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे खड़े होते हैं, यानी ओरिजिन पे होते हैं. तो पहली चीज है वो है एब्सिसा, और एक्सिस हमें बताता है टुवर्ड्स द राइट जाना या टुवर्ड्स द लेफ्ट. टुवर्ड्स द राइट अगर पॉजिटिव है तो, टुवर्ड्स द लेफ्ट अगर नेगेटिव है तो. देखिए जरा, उसने कहा 2 3, तो ये हो गया 2, यहाँ पे हम गए, ये रहा 2. और जो ऑर्डिनेट पार्ट है वो बताता है हमें परपेंडिकुलर ऊपर मूव करना है या नीचे. यहाँ पे मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. तो अब यहाँ पे देखें, उसने कहा पहले तो आप 2 पे जाइए, यानी राइट और लेफ्ट में अपन देखें तो राइट में 2 पे गए, और फिर 3 अपवर्ड 3, पॉजिटिव है से 3, ये पॉइंट है अपने पास 2, 3. दिस इज ए. एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो. लोकेट करना आता है ना, जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है आपने, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. So the very first point is A with coordinates 2 3. 2 is x, 3 is y, and 2 3 की पोजीशन ये है. तो ये हो गया अपना पास A, राइट. तो इसको मैं एक बारी के लिए यहाँ पे इस तरह से A लिख के छोड़ देता हूँ. दूसरा देखते हैं, इट इज -2 3, a point B whose coordinates are -2 3. -2 कहाँ जाना है, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट. जो एक्सिस है वो बताता है राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है. पॉजिटिव होगा तो राइट में जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में जाएंगे. तो -2 तो ये हुआ. अब ऊपर या नीचे जाना है, क्योंकि ऑर्डिनेट बताता है ऊपर जाते हैं या नीचे जाना है. तो हमें 3 है, यानी ऊपर जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास आएगा -2 3. दिस इज द पॉइंट बी. चेक कीजिए, यही है ना -2 3. ठीक है, ये तो नो. चलिए, तो इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, मैं फटाफट लोकेट कर दूं. अगर आप में से किसी को समझ में ना आया हो तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव इन द सेम वे. थोड़ा सा फास्ट ही चलूंगा क्योंकि ये बात समझ में आती है. x is c is -3 -1, -3 -1, somewhere here it is -3 -1. This is point C. Then we have to locate D, and D is 3 -1. X is 3 and y is -1. Here it is 3 -1. This is the position of D, where x is 3 and y is -1. So in which quadrant they lie? A lies in the first quadrant, B lies in the second quadrant, C lies in the third quadrant, D lies in the fourth quadrant, and so on. Our answer will be. Let's talk about the last two parts. He says in which quadrant or on which axis they lie. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा यही होगा, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस दे लाई. या तो क्वाड्रेंट में होंगे या एक्सिस में होंगे. अगर एक्सिस में है और वो कह रहा है 0 4 है, यानी x तो 0 है, एब्सिसा इज 0, एंड y इज 4, ऑर्डिनेट इज 4. ये रहा ओरिजिन. x 0 है, यानी ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में जाना है. 0 मतलब वही के वही रहोगे, और 4 प्लस का 4 ये रहा, तो ये हो गया 0 4. जरा चेक कीजिए, ये आपका पॉइंट है G, where x is 0 and y is 4. Similarly, another last part is H, and H is -3 0. X is -3, y is 0. -3 के लिए पॉजिटिव राइट में जाए या लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे. -3 यहाँ पे, और 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ऑर्डिनेट तो है ही नहीं. -3 0, ये रहा -3 0. This is the point H. So we know how to locate the points. We know in which quadrant or on which axis they lie. We can take the help of graph, but if the question says just
इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, वी नीड नॉट टू ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। हम पॉइंट के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख के हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, जीरोस देखते हैं एक्स और वाई के, हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करते हैं। ठीक बात है ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो नाइन्थ में क्या, नाइन्थ में वट एवर वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास वो तो अभी कैप्चर करना ही है, उसके साथ थोड़ा सा और अपना लेवल अब बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं, अब बात करते हैं नाइन्थ क्लास में क्या है। नाइन्थ क्लास का एक क्वेश्चन लेता हूं, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं क्वेश्चन का। से लोकेट, अगेन ऑल दीज क्वेश्चंस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग देम। I have not told you to do these questions in your copy. If you remember, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि आपको क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको क्लास में करवा रहा हूँ वो, या दूसरे क्वेश्चन इनकी तरह इसी तरह के और क्वेश्चन जो आपको कॉपी में करने हैं, वो जो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है कॉपी में, वो आज बाय इवनिंग आई विल सेंड यू। ठीक है, जो असाइनमेंट में 20 क्वेश्चन का भेजूंगा वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर इतना सही है, आप किसी भी रेफरेंस बुक में भी देख सकते हैं या टेक्स्ट बुक में भी। ठीक है बेटा, तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे करवाने हैं उसका पीडीएफ, उन क्वेश्चंस को, और प्लस मेरे को जो असाइनमेंट कल डिस्कस करना है वो मैं आज शाम तक आपको भेज दूंगा, वो आप कॉपी में करिएगा बाय ग्राफ कॉपी एंड डू ऑल द क्वेश्चंस इन ग्राफ कॉपी। जो ग्राफ पेपर्स पे करने हैं वो ग्राफ पेपर कीजिए, जो लाइन पेपर्स पे करना है वो लाइन पेज पे करिए काम। सिंपल है ना। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में लिखा है लोकेट या प्लॉट वो तो जाएंगे ग्राफ पेपर पे, क्योंकि कॉपी इसी तरह की तो होती है। आपके पास अगर आप ग्राफ कॉपी खरीदेंगे तो ऐसे ही समझिए आपको ये वाला ग्राफ पेपर होगा और ये लाइन वाला पेपर होगा। तो लोकेट या प्लॉटिंग की बात करेगा तो ये पेपर यूज होगा, अदरवाइज इस बात पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसा असाइनमेंट है उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा इन पेजेस पे है, लाइन वाले पेजेस जो है उन पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। कल डिस्कस करेंगे उन 20 क्वेश्चंस को जो आज मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा। चलिए आज बात करते हैं, अब बात करता हूँ उन क्वेश्चंस की जो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर कहीं मिले तो वो कर ले। ठीक है, तो लेवल बढ़ा दो। चलो लेवल बढ़ाते हैं। वो कहता है प्लॉट पॉइंट ए, सपोज इट इज -5 3, B 3 3, C 3 0 and D -5 0 in a Cartesian plane. Locate or represent these points. Again, you need not to do this question exactly in your copy. Exactly यही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा या कॉपी में करना है ऐसा नहीं है, आपको बात समझनी है, क्योंकि बात समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी पॉइंट दूंगा आप लोकेट कर देंगे, है ना। चलिए तो समझिएगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट है ए, वो है -5 3, x is -5 and y is 3, x -5 यहां पे मिला, y3 मुझे यहां पे मिल जाएगा, ये हो गया -5 3, दिस इज पॉइंट ए। देन ही सेज another point B whose coordinates are 3 3, abscissa is 3 and ordinate is 3, both the points are 3 3, okay, x3 y3 ये रहा, ये हो गया पॉइंट B 3 3। Then let's check out the third point, that is C. This is 3 0 3 0, so x is 3 and y is 0, this is C and this is 3 0। मुझे एक बार शायद ये बताने की जरूरत है, आप याद रखिए जहां पे मैं जिस पॉइंट लोकेट कर रहा हूं मैं वहां पे मोटे मोटे बिंदे नहीं बना रहा, एक छोटा सा पॉइंट करता हूं और उसके बाद उसको एंसर्कल कर देता हूं। लोकेट करने का, पॉइंट लोकेट करने का तरीका, ठीक है ना। जो भी आप पॉइंट लोकेट करें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, उसका अगर नाम दिया हुआ है जैसे इसमें ABCD दिया हुआ है तो ABCD नाम भी लिखें। ठीक है, चलो C लोकेट कर लिया। अब देखें जरा D पॉइंट को लोकेट करते हैं। इट इज -5 0, तो x is -5 and y is 0। x -5 कहां मिलेगा, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में, और 0 का मतलब कहीं जाना ही नहीं, ये रहा D, दिस इज -5 0। ओके,
ओके लोग के, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ज्वाइन देम इन ऑर्डर, ज्वाइन देम इन ऑर्डर में ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से जोड़ना है, यानी कंसेक्यूटिवली जोड़ना है। ए के बाद बी दिया हुआ है तो बी को जोड़ेंगे, अगर ए के बाद सी दिया होता तो ए को सी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन देम इन ऑर्डर, बहुत बढ़िया। ए को ज्वाइन करते हैं बी से, बी को ज्वाइन करते हैं सी से, सी को डी से और डी को ए से, ज्वाइन देम इन ऑर्डर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What type of geometrical figure you got? What type of geometrical figure you have? Yes, it is a rectangle. It is a rectangle. Okay. एक और क्वेश्चन पूछा उसने। Determine the area of the figures to obtain by joining these 4 points in order. Find the area of the figures to obtain. So obtain is a rectangle. And what is the area of rectangle? This length to breadth, right? So अगर हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हम इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, कोशिश करें वन डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन को समझने की। द हाइट और द ब्रेथ इज 3 यूनिट्स, isn't it? What is the length? -5 से 3। आप फिजिक्स में मोशन पढ़ चुके हैं पुनः से, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस तरह के ग्राफ जब हम मोशन में भी रीड करते थे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस नेगेटिव साइन से यूनिट की मेजरमेंट कम नहीं होती। हम यूं नहीं कहेंगे कि ये -5 + 3 था तो ये -2 होना चाहिए था, नहीं। हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी रिगार्डलेस द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखने। तो व्हाट इज द लेंथ? व्हाट इज द लेंथ? द लेंथ इज -5 एंड दिस इज 3। -5 पोजीशन के -5 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो व्हाट, हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी? इट इज 8 यूनिट्स। इसका डिस्टेंस कितना है? ये 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट्स है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं क्लास में, ये दीवार 5 फुट दूर, ये दीवार 3 फुट दूर, इन दोनों दीवारों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों दीवारों के बीच का डिस्टेंस 8 फुट, सही है ना? सो हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो वो माइनस क्यों नहीं हुआ, वो नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव होना होती है। तो 5 यूनिट्स यहाँ पे, 3 यूनिट्स वहां पे, तो 3 और 5 कितनी हुई? 8। तो 8 यूनिट लेंथ है और ब्रेथ है अपने पास में 3 यूनिट। 3 8 आर 24 स्क्वायर यूनिट। We will not say it is centimeter square, it is not meter square. What it is? It is square unit. So it is 24 square units. क्लियर है? लेंथ 8 क्यों हुई, ये बात समझ में आई क्या? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी क्योंकि आप फिजिक्स में ये कर चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, है ना? चलिए, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एक लाइन खींची जो -3 से 3 तक गई, ये नंबर लाइन है और मैं इस पे एक लाइन खींच रहा हूँ ए बी, ये है ए, ये है बी, एंड somebody says what is the length of this line? What is the length of this line? Should we say it is 0? क्या हम कहते हैं ये 0 है? भाई -3 और 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या इस इतनी बड़ी लाइन जो मैंने खींची है ए बी, क्या इसकी मेजरमेंट 0 सेंटीमीटर है या कुछ है? क्या ये 0 है, इसकी लेंथ है ही नहीं? क्या ए बी लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करती? गलत होगा ना अपन ऐसा कहेंगे तो। इसका मतलब सिंपल है कि अगर वो -3 जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, इससे -3 है। तो 3 इधर, 3 इधर, 3 and 3, दैट मीन्स हाउ, what is the distance between A and B? How many units they are apart from each other? They are 6 units apart. They are 6 units apart from each other. Got it or not? मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर O से C तक का डिस्टेंस, O से जो है वो 3 यूनिट है,
OD जो है वो 5 यूनिट है, तो CD की लेंथ कितनी है? CD 8 यूनिट है, तो एरिया हो जाएगा अपने पास 24 स्क्वायर यूनिट, राइट। इसी तरह से इस somebody says, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ लेगा एक 9 क्लास के स्टूडेंट से? पेरीमीटर दो, चलो पेरीमीटर बता देते हैं उसको। This is what is the perimeter of this rectangle? अच्छी तरह से पता है, पेरीमीटर इज 2L plus B। पेरीमीटर परिक्रमा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। पेरीमीटर इज व्हाट? द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर, the sum of the sides of an enclosed figure, since it is a rectangular figure, so the perimeter is 2L plus B. 2, what is the length? Right now we said the length is 8 units, so 8 units plus what is the breadth? This is 3 units, so 8 plus 3 is 11, 11 into 2 is 22 units। याद रखिएगा 22 स्क्वायर यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट्स है केवल, सही है ना। पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी? बिल्कुल, तो इट इज 22 यूनिट्स, so 22 units is the perimeter of this rectangle। Again, a question which is of section D, a question which is not difficult, a question which is yes longer, is a long answer question, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए। लेकिन आप देखिए शुरुआत से अगर अपन देखें फर्स्ट पार्ट से, तो ये मुश्किल नहीं था। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या करना था? लोकेट करना आता है, बिल्कुल आना चाहिए, लोकेट करना पॉइंट्स को, फिर ज्वाइन देम इन ऑर्डर, कर दिया ऑर्डर, फिर ज्वाइन, देन ही सेज what he says, he says what is the name, what type of figure we get? We got a rectangle, okay, then he says find the area. We know how to measure the length and width, so we can find out the area. Then he says find out the perimeter. Let's take out the perimeter also. There is nothing as such difficult, but it is a 4-mark question which used to come in section D whenever we set an annual examination question paper. This chapter is of 4 to 5 marks. तो एक क्वेश्चन हम जनरली ये करते हैं, 4 मार्क्स का देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का देते हैं, और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं। इजी सच का क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल में ही बात समझ में आ गई होगी पूरी, कि कुछ नहीं करना, पॉइंट को लोकेट करना है, उसके बाद में आपको लेंथ ब्रेथ ये सब निकालना। फिजिक्स में भी कुणाल सर ने समझाया है और अभी भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। द लेंथ ऑफ CD इज नॉट 2 or -2, इट इज 8 यूनिट्स। Towards the right, towards the left, doesn't matter in math in terms of length actually, because length is scalar. Got it? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं किसी और टाइप की फिगर का, कोशिश करते हैं इसको अच्छी तरह से समझने की, और मैं आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, डू इट इन कॉपरेट, ऑनेस्टली करिएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी है क्लास में। ऐसा नहीं कि बाकी सब डिफिकल्ट ही है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली इजी तो कह ही सकते हैं, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज प्लॉट अ ट्रायंगल whose vertices are A 04, B 00, C 20, and hence find its area. Locate a triangle ABC with vertices A whose coordinates are 04, B 00, C 20, and hence find its area. And hence find its area. एक टेल एंड क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन के साथ में जो छोटा क्वेश्चन होता है ना, तो उसे मैं टेल एंड क्वेश्चन कहता हूँ, कि टेल एंड जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब बड़े क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया उसने, तो बोला एरिया भी निकालना है। ठीक है, व्हाट इज A? 04, x is 0, y is 4, this is the point 04। ठीक है, then it is B 00, this is the point where we used to call it as origin, where abscissa and ordinate both are 0, 0। ठीक है, फिर एक C पॉइंट भी लोकेट करना है, उसने कहा 20, x is 2 and y is 0, ये वाला पॉइंट C, और इसको अपन कह देते हैं 2, 0। What type of figure you have? Yes, it's a triangle।
Can we say specifically it is a right angle triangle? Can we say by joining ABC we will get a right angle triangle more specifically? Yes. He says find its area. Easy. Area is what? Half base into height. इसमें हीरोज अभी झाड़ने की जरूरत नहीं है. हीरोज फॉर्मूला कब लगाते हैं? वैसे तो सभी तरह के ट्रायंगल्स में लगता है हीरोज फॉर्मूला, लेकिन हीरोज फॉर्मूला कब लगाना जरूरी हो जाता है? जहां पे हाइट नहीं होती, अल्टीट्यूड नहीं होता. यहाँ पे तो सिंपल है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेग्स. तो हाफ 2 into 4. The area is 4 square units. चेक कीजिए. इजी है ना? जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है. बस एक क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के सारे कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे अपने को और कहा जाएगा कि उसका एरिया निकाल दो, उसका पेरीमीटर निकाल दो, उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए. बस यही है. ठीक है, इजी, राइट? चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट दिया ना हो, लेकिन हमें बताया हुआ हो कि वो ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है या किस तरह की फिगर है. एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, देन आई विल वाइंड अप द क्लास बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक. चलिए, दिस वाज द फोर्थ क्वाड्रेंट विद पॉजिटिव नेगेटिव. हाँ जी, दिस इज पॉइंट ए 4 minus 2, B, sorry, 4 2, B minus 1 2, C, X Y, D 4 minus 5. Point A 4 2, B minus 1 2, C, X Y and D 4 minus 5 are the vertices of a rectangle ABCD. Are the vertices of rectangle ABCD. Plot these points and try to get the values of X and Y. Plot these points and hence try to get the values of X and Y. कोशिश कीजिए ये पॉइंट प्लॉट हो जाए और आपके पास में X और Y की वैल्यू आ जाए. ठीक है, चलो, x is equals to 4y is 2, somewhere here it is 4 2 a. X is 4, y is 2. B is minus 1 2, x is minus 1, y is 2, somewhere here it is minus 1 2. Then C is unknown to us. It says in general x and y, so there is no numerical value of x and y, and he says in the last part find the values of x and y. तो इसको अभी छोड़ देते हैं C को क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना. What is D? It is 4 minus 5. Okay, 4 minus 5, somewhere here it is x is equal to 4y minus 5. This is the point D, right? Okay, he says ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. तो क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेहनत करें और सोचें तो क्या हम C की लोकेशन लोकेट कर सकते हैं? C यहाँ से जो -1 है उससे आगे जाएगा और इधर -5 से आएगा, तो ही तो एक रेक्टेंगल बनाएगा. तो चेक कीजिए क्या हमें -1 और -5 ढूंढने में परेशानी हुई? भाई उसने A, B और D के कोऑर्डिनेट्स दे दिए. उसने कहा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. बहुत बढ़िया, ABCD इज अ रेक्टेंगल मिल गया. ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट? C कहाँ होना चाहिए? रेक्टेंगल में all the angles are 90 degree and opposite sides are equal and parallel to each other. तो देखिए जरा C -1 -5 पे तो होना चाहिए. ठीक है ना? इसको फिर से सोचें अगर जरा आप. ये 3 पॉइंट उसने दे दिए और चौथा पॉइंट बोला फोर्थ वर्टाइसिस निकालो इस रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल तो उसने बता ही दिया कि है. तो रेक्टेंगल तो वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है. ईच एंगल इज ऑफ 90. तो यहाँ पे तो आएगा C. C कहाँ आएगा? -1 -5 पे. मिल गए कोऑर्डिनेट.
अब मैं ये बात कर रहा था आपसे कि इसका अगर कोई टेल एंड क्वेश्चन हो, इसका एरिया पूछा हो या रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा हो, तो हम वो भी बता सकते हैं, है ना। लेंथ और ब्रेथ निकालनी आनी चाहिए। L into B is the area. So what is the length? Length is 2 units above the origin and 5 units below the origin. So in all it is 7. 2 यूनिट ऊपर ओरिजिन से, 5 यूनिट ओरिजिन से नीचे, तो कितनी हो गई? 7। और अगर ब्रेथ की बात करें तो राइट हैंड साइड में 4 और लेफ्ट हैंड साइड में 8, यानी कितना हो गया टोटल? 5। Towards the right hand side it is 4, towards the left hand side it is -1 or 1, so it is 5. So the area is 35 square units. And if somebody says find out its perimeter also, then 2L plus B is the formula. 2, 7 plus 5, 7 plus 5 is 12, 24 units इसका आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए आपके पास, सही है ना? इजी है ना ये? आपका कल वाइंड अप कर दें।